हम पढ़ेंगे ड्यूटरनॉमी 33 चैप्टर 34 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। रिबांति खंबरहो शराखा सिरालरबहो को सियांदुरा रिदानने के सियांदुरा। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो, इन वचनों में परमेश्वर पिता हमारे अंदर आपके भेद खुल जाए। हम परमेश्वर आपके आत्मा के द्वारा परमेश्वर शुद्ध और अशुद्ध भेद जानते हुए, खुदा परमेश्वर आपका भय मानते हुए आपने दिए हुए रास्ते चल सके, अनुग्रह कीजिए। हर एक झूठ की ताकत हमारे ऊपर से हटा दीजिए और असलियत जो है, सच्चाई जो है, बेनकाब करके हमारे सामने लाइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन आमीन। ड्यूटरनॉमी 33 चैप्टर 34 चैप्टर हम पढ़ेंगे 33 फर्स्ट। पहले पढ़ेंगे And this is the blessing wherewith Moses, the man of God, blessed the children of Israel before his death. And he said, The Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came with 10,000s of saints. From his right hand went a fiery law for them. Yea, he loved the people, all his saints are in thy hand, and they sat down at thy feet. Everyone shall receive of thy words. Moses commanded us a law, even the inheritance of the congregation of Jacob. And he was king in Jeshurun, when the heads of the people and the tribes of Israel were gathered together. Let Reuben live and not die, and let not his men be few. And this is the blessing of Judah. And he said, Hear, Lord, the voice of Judah, and bring him unto his people. Let his hands be sufficient for him, and be thou an help to him from his enemies. And of Levi he said, Let thy Thummim and thy Urim be with thy Holy One, whom thou didst prove at Massah, and with whom thou didst strive at the waters of Meribah. Who said unto his father and to his mother, I have not seen him, neither did he acknowledge his brethren, nor knew his own children. For they have observed thy word, and kept thy covenant. They shall teach Jacob by thy judgments, and Israel thy law. They shall put incense before thee, and whole burnt sacrifice upon thine altar. Bless Lord his substance, and accept the work of his hands. Smite through the loins of them that rise against him, and of them that hate him, that they rise not again. And of Benjamin he said, The beloved of the Lord shall dwell in safety by him, and the Lord shall cover him all the day long, and he shall dwell between the shoulders. And of Joseph he said, Blessed of the Lord be his land, for the precious things of heaven, for the dew, for the deep that coucheth beneath, and for the precious fruits brought forth by the sun, and for the precious things put forth by the moon, and for the chief things of the ancient mountains, and for the precious things of the lasting hills, and for the precious things of the earth, and fullness thereof, and for the good will of him that dwelt in the bush. Let the blessing come upon the head of Joseph, and upon the top of the head of him that was separated from his brethren. His glory is like the firstling of his bullock, and his horns are like the horns of unicorns. With them he shall push the people together to the ends of the earth, and they are the 10,000s of Ephraim, and they are the thousands of Manasseh. And of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar in thy tents. They shall call the people unto the mountain. There they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas of his
and of treasures hid in the sand. And of Gad he said, Blessed be he that enlargeth Gad, he dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head. And he provided the first part for himself, because there in a portion of the lawgiver was he seated, and he came with the heads of the people. He executed the justice of the Lord, and his judgments with Israel. And of Dan he said, Dan is a lion's whelp, he shall leap from Bashan. And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favor and full with blessing of the Lord, possess thou the west and the south. And of Asher he said, Let Asher be blessed with children, let him be acceptable to his brethren, and let him dip his foot in oil. Thy shoes shall be iron and brass, and as thy days, so shall thy strength be. There is none like unto the God of Jeshurun, who rideth upon the heaven in thy help, and in his excellency on the sky. On the way, the eternal God is thy refuge, and underneath us are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, Destroy them. Israel then shall dwell in safety alone. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn and wine. Also his heavens shall drop down dew. Happy art thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord, the shield of thy help, and who is the sword of thy excellency. And thine enemies shall be found liars unto thee, and thou shalt tread upon their high places. Deuteronomy 34 chapter, King James Version में से ही पढ़ रहे हैं. And Moses went up from plains of Moab unto the mountain of Nebo, to the top of Pisgah, that is over against Jericho, and the Lord shewed him all the land of Gilead unto Dan, and all Naphtali, and the land of Ephraim, and Manasseh, and all the land of Judah, and the utmost sea, and the south, and the plain of the valley of Jericho, the city of palm trees, unto Zoar. And the Lord said unto him, This is the land which I swear unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. So Moses, the servant of the Lord, died there in the land of Moab, according to the word of the Lord. And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth Peor. But no man knoweth of his sepulchre unto this day. And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force abated. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab.
30 days. So the days of weeping and mourning for Moses were ended, and Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom, for Moses had laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. And there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face, in all the signs and the wonders which the Lord sent him to do in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all his land, and in all that mighty hand, and in all the great terror which Moses shewed in the sight of all Israel. पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 अध्याय। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 33 अध्याय पहले वचन से। मूसा का इस्राएलियों को आशीर्वाद देना। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपने मृत्यु से पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है। उसने कहा, यहोवा सीनै से आया और सईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने परान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियाँ निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पाँवों के पास बैठे रहते हैं। एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का नीच भाग ठहरी। जब प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुष और इस्राएल के गोत्री एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरून में राजा ठहरा। रूबेन न मरे वरन जीवित रहे, तो भी उसके यहाँ के मनुष्य थोड़े हो। और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा, तू यहूदा की सुन। और उसे उसके लोगों के पास पहुँचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। फिर लेवी के विषय में उसने कहा, तेरे तुम्मीम और उरीम तेरे भक्त के पास हैं, जिसको तूने मस्सा में परख लिया और जिसके साथ मरीबा नामक सोते पर तेरा वाद विवाद हुआ। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता, और न तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और न अपने पुत्रों को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। वे याकूब को तेरे नियम और इस्राएल को तेरी व्यवस्था सिखाएंगे और तेरे आगे धूप और तेरी वेदी पर सर्वांग पशु को होम बलि करेंगे। हे यहोवा, उसकी संपत्ति पर आशीष दे और उसके हाथों की सेवा को ग्रहण कर। उसके विरोधियों और बैरियों की कमर पर ऐसा मार कि वे फिर न उठ सके। फिर उसने बन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रियजन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है, और सूर्य के पकाए हुए अनमोल फल और जो अनमोल पदार्थ मौसम के उगते हैं, और प्राचीन पहाड़ों के उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों के अनमोल पदार्थ और पृथ्वी और जो अनमोल पदार्थ उसमें भरे हैं और जो झाड़ी में रहता था उसकी प्रसन्नता, इन सबों के विषय में यूसुफ के सिर पर अर्थात उसी के सिर के चांद पर जो अपने भाइयों से न्यारा हुआ था आशीष ही आशीष फले। वह प्रतापी है, मानो गाय का पहलौठा है, और उसके सींग बनैले बैल के से है। उनसे वह
देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा। वे प्रेम के लाखों लाख और मनुष्य के हजारों हजार है। फिर जबूलून के विषय में उसने कहा, हे जबूलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद कर। वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। फिर गाद के विषय में उसने कहा, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। और उसने पहला अंश तो अपने लिए चुन लिया, क्योंकि वहां रईस के योग्य भाग रखा हुआ था। तब उसने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषों के संग आकर यहोवा के का ठहराया हुआ धर्म और इस्राएल के साथ होकर उसके नियम का प्रतिपालन किया। फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बाशान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीष से भरपूर है, तो पश्चिम और दक्षिण के देश का अधिकारी हो। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपना पाँव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे, और जैसे तेरे दिन वैसा ही तेरी शक्ति होगी। हे यशूरून, ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। वह तेरी सहायता करने को आकाश पर और अपना प्रताप दिखाता हुआ आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है, उनको सत्यानाश कर दे। और इस्राएल निडर बसा रहता है और नए अन्न और नए दाख मधु के देश में याकूब का सोता अकेला ही रहता है, और उसके ऊपर के आकाश से ओस पड़ा करती है। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरे सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। मूसा की मृत्यु, 34 अध्याय पहले वचन से। फिर मूसा मोआब के अराबा में नबो पहाड़ पर, जो पिसगा की एक चोटी और यरीहो के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नामक सारा देश और नप्ताली का सारा देश और एफ्राइम और मनश्शे का देश और पश्चिम के समुद्र तक का यहूदा का सारा देश और दक्षिण देश और सोवर तक की यरीहो नामक खजूर वाले नगर की तराई, यह सब दिखाया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वही मोवाब के देश में मर गया, और उसने उसे मोवाब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु न तो उसकी आंख धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। और इस्राएल मोवाब के अराबा में मूसा के लिए 30 दिन तक रोते रहे। तब मूसा के लिए रोने और विलाप करने के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, और इस्राएली उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी उसकी मानते रहे। और मूसा के तुल्य इस्राएल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, और उसको यहोवा ने फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के सामने और उसके सारे देश में सब चिन्ह और चमत्कार करने को भेजा था, और उसने सारे इस्राएलियों की दृष्टि में बलवंत हाथ और बड़े भय के काम कर दिखाए।
थैंक यू जीसस, हमें इन वचनों में फिट एंड फिक्स कर परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं। नासरी यीशु के नाम में पिता, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डर लेना इसमें लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 इयर्स का बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रोमन्स 3 चैप्टर 20 वर्स से 25 वर्स तक, सैम्स 97। रोमियो के पत्र 3 अध्याय 20 वचन से 25 वचन तक, भजन संहिता 97 अध्याय। हम अकेले में बैठकर अपने व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत समय में पढ़ने के कारण हम परमेश्वर जो चाहता है हमसे उस बात को हम मान सकेंगे। इसके लिए हमने अपने अकेले में बैठकर इसे पढ़ना है। ज़रूरी नहीं सभीयों ने ऐसे ही पढ़ना है। आप अपने तरीके से परमेश्वर का आत्मा जैसे आपको अगुवाई करे वैसे पढ़ सकते हैं, लेकिन निश्चित यही करना है कि परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है और हम परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डर लेनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।